خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 بار اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انگریزی زبان کا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن میری اور آپ کی پوری لائف جو ہے وہ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لفظ کے طور پر یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن میری اور آپ کی پوری لائف جو ہے وہ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا انحصار صرف اسی بات پر ہے کہ میں اور آپ کتنے فوکسڈ ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا چیک تو کریں کہ آپ کتنے فوکسڈ ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے لے کر کتنے سنجیدہ اور کتنے فوکسڈ ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو جواب دینا ہو۔ آج کے حوالے میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے پال کہا جاتا ہے، مقدس پالوس کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی فوکسڈ شخص ہے، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے سامعین کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ خود کو فوکسڈ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہے، تب وہ کہیں جا کر اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم کشت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک ہم، سچائی یہ ہے، حقیقی معنوں میں فوکسڈ نہیں ہو پائیں۔ فوکسڈ ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں۔ فوکسڈ ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم مقدس پالوس کی طرح اپنے آپ کو مارتے کوٹتے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگ بے تحاشا پروگرامز بناتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر مٹاتے ہیں، اور کئی بار لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ فوکسڈ نہیں ہوتے۔ ہم کتنی بھی محنت کریں، ہم کتنا بھی ہارڈ ورک کریں، جب تک ہم فوکسڈ نہیں ہیں، نشانے پر نہیں ہیں، ہم اپنی منزل کو چھو نہیں سکتے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم فوکسڈ ہوں، اپنے ٹارگٹ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اور میں آپ کو چیلنج دے کر یہ کہتا ہوں، ذرا چیک کیجئے گا، کرسمس کا تقریباً آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس سیزن کے دوران آپ کا فوکس کیا ہے؟ اس سیزن کے دوران آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کیا خود کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے چرچ کے لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ فوکس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اردو لغت کے مطابق، اردو ڈکشنری کے مطابق فوکس کا مطلب ہے نہ ادھر نہ ادھر، سیدھا اپنے ٹارگٹ پر، نہ ادھر نہ ادھر۔ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ زگ زیگ کرتے رہے۔
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और चूंकि वो भटकते रहते हैं मौजों की तरह, याकूब के खत की रोशनी में उछलते रहते हैं, इसलिए वो अपने टारगेट्स को अचीव, अपने हदफ को अचीव नहीं कर पाते। तो फिर बड़ा जरूरी है कि क्रिसमस के इस सीजन के दौरान एक टारगेट बना लें, हदफ बना लें कि मैंने और आपने क्या करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं और आप फोकस्ड होंगे तो फिर ये सीजन हमारे लिए बरकत का बायस होगा। और ये एक कदम और आगे बढ़े। मुझे प्यारे बच्चों उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब कोई जवान मुझे ये कह रहा होता है कि मुझे नौकरी ना मिली तो मैं पादरी बन जाऊंगा। मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि खुदा के घर में वेलों की बड़ी गुंजाइश है, जबकि ये खुदा का कलाम इस बात की नफी करता है। खुदा के घर में वेलों की कोई गुंजाइश नहीं भाई। निखट्टू, काम न करने वाले, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों की खुदा के घर में कोई गुंजाइश नहीं। कोई एक बंदा चैलेंज करते हुए कहता हूं मुझे दिखा दे जो वेला था और बाइबल के खुदा ने उसे चुन लिया। कोई एक चैलेंज के साथ ये बात कहता, कोई एक बंदा मुझे बताएं जो वेला था, निखट्टू था, फारिग था और खुदा ने उसे लिया, उसे अपने लिए चुन लिया। ऐसा नहीं हुआ। खुदा हमेशा मसरूफ तरीन लोगों को चुनता, काम करने वालों को चुनता है। और बाइबल का खुदा चाहता है कि चूंकि फसल बहुत है इसलिए काम करने वाले भी असल हो, असल हो। मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब आज का नौजवान ये कह रहा होता है पादरी साहब ट्राई कर रहे हैं, अगर कुछ ना हुआ तो फिर अब्बा का बिजनेस तो है ही। मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब कोई बेटी ये कह रही होती है कि चले पादरी साहब अगर ये वाला काम ना चला तो फिर छोटी मोटी शॉप तो कर ही लेंगे ना, छोटा मोटा कोई सेटअप तो बना ही लेंगे ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप टारगेट पर नहीं हैं, आप मुख्तलिफ ओपिनियंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि आप अपने हदफ पर नहीं हैं, इसलिए माजरत के साथ कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आप अपने हदफ को कभी पा भी सकेंगे। आप टारगेट पर ही नहीं, आप निशाने पर ही नहीं, आप तो मुख्तलिफ ओपिनियंस के चक्कर में पड़े हुए, ये ना हुआ तो ये कर लेंगे, ये ना हुआ तो ये कर लेंगे, ये ना हुआ तो ये कर लेंगे। आपने तो A B C D और Z तक लाइन लगाई, गलत रवैया। मुसम्मम इरादा कर लें, और ये अजीम किताब बताती है कि वो क्या है जो मैं और आप नहीं कर सकते। और मुकद्दस पौलुस कहता है मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कर उस वक्त सकता हूं जब मैं अपने टारगेट पर, अपने हदफ पर हूं। बहुत से पासवान हैं जो यहां से अमेरिका और कनाडा चले गए और वहां बर्गर का ठेला उन्होंने लगाया। बहुत से पासवान ऐसे हैं जो यहाँ पासवान थे और वहां वो ऊबर चला रहे हैं। इन्हों पंजाबी कहते हैं शर्म दा घाटा। अगर बंदे में जरा सी भी गैरत हो तो वो ये जरूर सोचे कि मैं खुदा का नौकर होते हुए अब किसी इंसान की नौकरी कैसे करूंगा। खिदमत के इन 40 सालों में चले छोटी सी तालीम तो है ही ना, उसके साथ तजर्बा भी है। मुझे बड़ी ऑफर्स हुई,
मैंने इंटरनेशनली जितना भी सफ़र किया, हर सफ़र पर, अभी भी जब पिछले साल मैं फ्रांस में गया तो लोग पकड़ पकड़ कर, सईदाबाद पेरिस के कुछ लोग वहाँ पर थे, कहने लगे भाई साहब इतने रह जाओ। मैं क्या इतने की करवाना जी, मेरे को गंडे पटवाने जी, मेरे को चाय का ठेला लगाऊं यहाँ पर। और यार मैं खुदा का खादिम हूं, मेरी कोई इज्जत है, मेरा कोई नाम है, मेरा कोई मुकाम है, मैं अब ऊपर चलानी शुरू कर दूं? और मैंने हमेशा लोगों से खुदा के खौफ में कहता हूं, यही कहा, सारी उम्र यही काम किया है, 24/7 किया है। मुझे दुनिया का कोई काम आता नहीं, और खुदा करे कभी भी ना आए, कभी भी ना आए। मैं यही काम करना चाहता हूं। आप जो कुछ कर रहे हैं, आपको वही काम करना चाहिए। इधर उधर इधर उधर इधर उधर हाथ ना मारें भाई। आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, आप अपना रुपया भी जाया करेंगे, आप अपनी एनर्जी भी जाया करेंगे, और आप अपना वक्त भी जाया करेंगे। सिर्फ एक ही काम करेंगे, सिर्फ एक ही काम। कितना बुरा लगेगा। आओ जी तुहानू मिलाइए, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪਿਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਭਰ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਬਹਿਰੇ ਜੇ, और ये गुंगे भी नहीं, और संडे को ये पादरी बन जाते हैं। अरे भाई ये एक ही काम करे ना। इस किताब में क्या लिखा है? कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, वो एक ही को खुश करेगा, एक ही काम करे ना। और जब आप एक ही काम को पकड़ लेते हैं, उसमें जोर मारते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरी अपनी जिंदगी की मिसाल ये है, जिंदगी में खुदा ने बेबस और मजबूर कभी नहीं होने दिया। और मुझे तो महज़ूल ये फख्र है, मैं तो यहाँ हाथ मारकर अपने खानदान के लोगों को कहता हूँ, आप किसी बंदे के नौकर हैं, मैं अपने रब खुदावंद का नौकर हूँ। और जब हम रब खुदावंद के अकरम नौकर हैं, आप अपने नौकरों के साथ इतना बेहतरीन सलूक करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, क्या वो अपने नौकरों का ख्याल नहीं रखेगा? ये कैसे मुमकिन है भाई? कुछ पासवान जो हैं वो यहां पर भी और दुनिया भर में इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं। मुझे पिछले दिनों सारा ने बताया, मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा अजीब लगा। और इस किस्म की हरकतें वो पासवान करते हैं जिनके पास खुद की अश्योरेंस नहीं। लफ्जों पर गौर करें भाई। मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब तुम हमें को बीमा शीमा ले है कि नहीं? मैं क्या उतने बीमा कितना है ना। मुझे इंश्योरेंस की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे इस बात की अश्योरेंस है कि मैं यहाँ भी महफूज हूँ और मैं आने वाले कल में भी महफूज हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं बवजह मजबूरी आप फंस जाते हैं तो फिर उस पर क्या कह सकते हैं, लेकिन दिल से कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए कि मैं अश्योर हूँ इस बात पर कि उसके स्टोर रूम में जो कुछ मेरे और जो कुछ प्यारे बच्चों आपके लिए है वो मेरे और आपके लिए काफी है, वो बहुत है। और इस आयत को कभी ना भूला करें, जेड़ा मेरा हिसाब ओदा तू रखवाना। जो आपका है वो दुनिया का कोई माई का लाल ले नहीं सकता, वो सिर्फ आपको मिलेगा और मिलकर रहेगा। हम जरा फोकस के हवाले से एक बेहतरीन मिसाल को दें। फोकस होता क्या? अपने घरों में जाकर पैदाइश की किताब के 30वें बाब को पढ़िएगा। चलें, टाइम थोड़ा सा है, हम इस हवाले को देख भी सकते हैं। आइए मेरे साथ देखें। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब का 30वां बाब। बहनें,
इस चैप्टर से निकल चुकी हैं, बाइबल स्टडी करते हुए इसे जानती हैं, और मैं आपको फिर से ये याद दिलाना चाहता हूँ। राखल को पाने के लिए, अब ध्यान करें भाई, राखल को पाने के लिए याकूब इंतहाई फोकस्ड था। और यहां लिखा है, जब उसके मामू ने, लाबन ने, लबनान है, लबनान की बात हो रही है, लाबन ने जब उससे ये कहा कि देख भाई, हमारी ट्रेडिशन ये है कि पहले बड़ी बेटी को ब्याहा जाता है, फिर उसके बाद छोटी। अगर तू छोटी से भी शादी करना चाहता है तो फिर तुझे 7 साल मेरी और खिदमत करनी है। और लिखा है वो इतना फोकस था कि उसे राखल के लिए वो 7 साल चंद दिनों के बराबर लगे। हाय हाय, क्या ही बात है। इसको कहते हैं फोकस्ड होना। वो इतना फोकस था कि उसे राखल के लिए वो शादी के 7 साल जो गैप दे दिया गया, वो चंद दिनों के बराबर लगा। और आगे चलकर जब उसके मामू ने बार बार उसके साथ धोखा किया, कम से कम 10 बार, याकूब खुद इस बात का इकरार करता है कि तूने 10 बार मेरी उजरत, मेरी मजदूरी बदली है। तो फिर खुदा की तरफ से उसे ये अकल दी गई कि वो चितकबरी और अबुल किस्म की जो भेड़ें हैं उनको पैदा करे, क्योंकि ये डिसाइड हो चुका था कि ये जो चितकबरी किस्म की भेड़ें होंगी वो तेरी, और बाकी जो काली और दूसरी रंग की भेड़ें होंगी वो मामू की होंगी। आप जानते हैं, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि याकूब ने क्या किया और किस तरह से उन जानवरों को भी फोकस्ड बना दिया। जब वो पानी पीने के लिए आती थी तो सफेदे के दरख्त को, चूंकि उसने झील रखा था, जब वो पानी पीते पीते उसको देखती थी तो उसी दौरान जब वो बच्चे पैदा करती थी तो वो बच्चे उबलक और चितकबरे होते। मुकद्दस पौलुस क्या कहता है? वो कहता है मैं बेठिकाना नहीं दौड़ता, मैं हवा को मुक्के नहीं मारता, मैं फोकस्ड हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे उस इनाम को हासिल करना है जो बाइबल के खुदा ने मेरे लिए तैयार कर रखा। इसलिए वो अपने सामीन को ये तलकीन करता है कि उन्हें फोकस्ड होना पड़ेगा। मेरे यीशु के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके फोकस को हटाने के लिए इब्लीस ने कितने जतन किए, उस वक्त के लोगों ने कितने जतन किए। लिखा है उन्होंने उसे पकड़ा और कहा कि तू हमारा बादशाह बन, लेकिन लिखा है कि वो उनके बीच से निकल गया और कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। इतना फोकस्ड था कि उसने बहुत कम खाया, उसने बहुत कम आराम किया, क्योंकि वो अपने गोल पर, अपने निशाने पर था। और अपने निशान पर पहुंचकर मेरे यीशु ने हाथ फैलाते हुए ये कहा तमाम हुआ। मेरा टारगेट जो है वो पूरा हुआ, जो मैंने करना था उसे मैंने मुकम्मल किया। इस साल में अरे बच्चों, आपने क्या इरादा किया? क्या करना चाहते? कितने फीसद कामयाब हुए? अपने टारगेट पर भी हैं या कि आप अपने टारगेट से दूर हैं? और अगर दूर हैं तो आज जरा नाप तोल कीजिएगा कि अपने टारगेट से कितने दूर हैं। आपने क्या करना था जो इस साल आप नहीं कर पाए? अब आइए जरा साइंस की तरफ चले जाएं और खत्म करेंगे। मैं बड़ा खुश हूं कि कादिर खुदा ने आपको गाड़ियां दी। जिशान शायद थोड़ा सा लेट आया। हमने जिशान के लिए, हमने बॉबी सोत्रा के लिए इन 2 दिनों में कादिर खुदा ने हमें 2 0 मीटर गाड़ियां दी। हमने खुदा की शुक्रगुजारी की। 18वीं और 19वीं
कितना बड़ा नंबर है कि खुदा ने हमारी कलीसिया को इतना ब्लेस किया है कि असी अपना शोरूम खोल सकते हैं। बाहर गड्डियां की लाइन लगी, ये मेरे यस्सु का फजल है भाई, ये मेरे रब का फजल है, ये फजल है उसका। हर गाड़ी में कम से कम 4 गियर तो होते हैं, कम से कम 4। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ पुराने ड्राइवर भी बैठे रहे हैं, 4 तो गियर हैं ही पक्के, ठीक है जी। अब आपको पता ये होना चाहिए कि किस वक्त में आपने कौन सा मरीसा कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरी थी ऑटोमेटिक, इसलिए तो पता नहीं। अच्छा, ये ना वैसे मैं आपको बताऊं, सच्ची से बताऊं, ये ऑटोमेटिक गाड़ियां जो है ना, ये खवातीन के लिए बनी थी, असी बंदे भी चलाई होंगे। असल में ये खवातीन, सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल, आप गूगल करके देख लीजिएगा, असल में ये खवातीन के लिए गाड़ियां बनी थी, बंदे भी चलाई होंगे। 4 गियर है भाई। अगर आपने मैनुअल गाड़ी पर ट्रेनिंग ली है, मैंने ली थी मैनुअल गाड़ी पर, अगर आपने मैनुअल गाड़ी पर ट्रेनिंग ली है तो आप जानते हैं कि एक गियर से निकालकर शमाउन दूसरे गियर में डालने का एक वक्फा, एक टाइम इंज नहीं होता कि तुसी सीधा ही चौथे गियर च पा छड़े। यहां तो मौजें लगी हुई हैं, आपने गाड़ी पी से निकालकर डी में डाली, तो पता नहीं की होंगे। लेकिन फर्स्ट गियर के बाद सेकंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ गियर तक पहुंचने के दौरान वक्फा भी है और टाइम भी है भाई। आपकी गाड़ी मोशन नहीं पकड़ेगी, आपकी गाड़ी उस वक्त तक ठीक मोशन में नहीं आएगी जब तक आप सही गियर में गाड़ी नहीं डालेंगे। यही हाल बच्चों जिंदगी का है। जिंदगी की गाड़ी के चूंकि हम गियर जो है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हम मोशन में नहीं। किसी ने सीधा ही चौथे गियर च पा छड़ी, वो इथों तक चलती है, झटका खा के बंद हो जाती है। हमेशा गाड़ी को आपने फर्स्ट गियर में उठाना है, उसके बाद फिर सेकंड, उसके बाद फिर थर्ड। और रश के टाइम में तो फर्स्ट सेकंड ही में गाड़ी चलती है, इससे ऊपर गाड़ी जाती ही नहीं है। लेकिन आप चूंकि डी के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से वक्त में कौन सा गियर जो है वो इस्तेमाल हो। तो अपनी जिंदगी का सही गियर लगाएं भाई। 2 महीने रह गए, 2 भी नहीं रह गए, सही गियर में डालें गाड़ी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, आप अपने हदफ पर पहुंच जाएं, तो फिर आपको सही गियर में गाड़ी डालनी होगी। ले अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, समझाने लगा हूं, गूगल करके चेक कीजिएगा, जो इसी हफ्ते के दौरान मैंने सीखी। ये मेरे और आपके कान के बिल्कुल पीछे यहां एक डॉट मौजूद है जिसे ब्लू डॉट कहते हैं, लैटिन जुबान में ब्लू डॉट। इसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है जो मेरे और आपके दिमाग को मोशन में लाने का काम करती है। इसी की बदौलत खुदा का सिस्टम बड़ा पेचीदा है, बड़ा शानदार है। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, मैं अजीबो गरीब तौर पर बना। 139वां ज़बूर है, मैं अजीबो गरीब तौर पर बना हूं। ये कितनी अजीब बात है कि बच्चा मां के बतन में अजीब तौर पर बनता है। और मैंने आपको सिखाया था कि मां के बतन में सबसे पहले बच्चे के कान बनते हैं। ये याद रखना है आपने भाई, सबसे पहले मां के बतन में बच्चे के कान बनते हैं। और अब मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है कि 3 महीने गुजरने के बाद बच्चा जो है वो सारी की सारी कन्वर्सेशन सुन रहा होगा। माँ बाप की सारी फड्डेबाजियां
वो रिसीव कर रहा हो। अच्छा, लोग सर पर बाजू रखकर मेरे दौर में ये कहा करते थे, साढ़े घर में इंजदा पैदा कितों हो गया है, तुसां पैदा किया लड़ लड़ के, तुसी हलाकू खान दी औलाद हो, इतना लड़ते हो, इतना लड़ते हो, इतना लड़ते हो कि हद नहीं। और मैंने आपको कहा था फरा आपा का टीवी पर जो प्रोग्राम आया था बच्चे के हवाले से, यहूदी बच्चों के हवाले से, वो जरूर सुनिएगा। दिल आपा जिसे हम कहते हैं, है ना, वो कहती है कि यहूदी बच्चे क्यों पीएचडी कर जाते हैं, यहूदी बच्चे सारे के सारे काबिल क्यों होते हैं। उसकी वजह यह है, प्रेगनेंसी के बाद उन 9 मंथ्स के दौरान मियां बीवी बिल्कुल नहीं लड़ते। अपने घर में किसी पीने पिलाने वाले को, सिगरेट तक पीने वाले को एंटर नहीं होने देते ताकि उसका असर उस बच्चे पर ना पड़े। वो आपस में रियाजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर ऊंची आवाज में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि अंदर बच्चा वो सारी की सारी बातें सुन रहा हो। और तजर्बा किया गया, अमेरिका में रिसर्च की गई, पूरी दुनिया से कोई 6000 बच्चे शहरों में इकट्ठे किए गए और उनके सामने, उन बेटियों के सामने जो प्रेग्नेंट थी, मैथमेटिक्स की बातें की गई। और जब वो 6000 के करीब बच्चे इस दुनिया में आए तो हैरान कुन तौर पर यह देखा गया कि वो मैथमेटिक्स में इंतहाई जबरदस्त थे। अच्छा, मैनू नहीं पता कि अरमान ते सारा किस तरह की गल करते होंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार कहा कि एड्रियल जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत शाइन है। आप जिस किस्म की बात करते हैं बच्चे सुनते हैं भाई। और मैंने पिछले पैगाम में आपको सिखाया था, लफ्जों में ताकत है भाई, लफ्जों में कुदरत पाई जाती है। आप बोलते हैं और आपके बोलने से बहुत सी चीजें खुलती और खुलती चली जाती हैं। आप बोलते हैं तो एलिया की तरह आसमान बंद भी कर देते हैं। ये वाला जो स्पॉट है, यहीं पर है सब कुछ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, किसी भी मेडिकल के बंदे से पूछ लीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये इंतहाई सेंसिटिव है। हमारे कानों के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड है, और अगर ये लिक्विड डिसबैलेंस हो जाए तो बंदा किसी काम के लायक नहीं रहता। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को स्क्रीन से भी हटाएं, और वो बच्चे जो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं उनको सख्ती के साथ मना करें कि वो ये ना करें। अगर अंदर डिसबैलेंस हो गया, अंदर का सिलसिला हिल गया, बच्चे कमले हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहे, कुछ भी करने के लायक नहीं होंगे। तो मैं पहले तो वालिदैन को निशान ये कहा करता था कि बच्चों की आंखें बचाएं। अब मैं आज कह रहा हूं, मेहरबानी से उनके कान भी बचाएं। सारी उम्र सुनना है भाई। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चल्ला बाबा बन जाए? चले बाबे का पता है, हारून अपनी गल सारी सुन लेनी है, दूसरे है ऐ बड़ा रवैया है। अच्छा, अपनी कोई बात, अच्छा मेरी बात कर रहे हो, अपनी बात सारी इन्होंने चल्ला बाबा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चल्ले बाबे हो जाए? समझ ही ना आए। और आप देखें, स्क्रीन ने कई दफा हमारे बच्चों को इस तरह से कर भी दिया है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, आप उनको 10 आवाजें लगाएं और पता ही नहीं चलता बच्चों को कि आवाज आ रही, वो अपनी दुनिया में मस्त। ये आपका मास्टर स्विच है भाई। इस स्विच की आपने बहुत ज्यादा कदर करनी है, क्योंकि यहीं से एनर्जी रिलीज होती है, यहीं से, और फिर इसी के कारण दिमाग जो है वो फंक्शन में, मोशन में आता है, और फिर वो मुख्तलिफ तरह से
मुख्तलिफ फरीज़ों को सरअंजाम दे रहा होता है। कुछ चीज़ें उठाकर आपके स्टोर रूम में रख रहा होता है, कुछ चीज़ें उठाकर आपके यहाँ रख रहा होता है, कुछ चीज़ें उठाकर आपके यहाँ रख रहा होता है, और कुछ चीज़ें मुस्तकिल उठाकर यहाँ रख रहा होता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप फोकस्ड हों, बड़ा ज़रूरी ये है कि आप अपने फोकस से इधर उधर होने की कोशिश न करें। तो फिर आइए आज नवंबर के आगाज में एक और प्रैक्टिकल करें। एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें एक दूसरे की तरफ मुंह। आप एक दूसरे के हमदर्द हैं? बोले भाई, आप एक दूसरे के हमदर्द हैं? एक खानदान के लोग होने के नाते एक दूसरे को प्यार करते हैं? प्यार करते हैं? प्यार करते हैं? चलें फिर करते हैं एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से कहें, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे तो फिर मौजों की तरह उछलते बहते फिरेंगे। चलिए दोबारा कहें एक दूसरे को। एक बार सिर्फ फिर कहें, एक बार दोबारा। लो प्यारे बच्चों, मैं खुदा के रूह से भरा हुआ आपको ये कहता हूं। देखिए मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। मैं खुदा के रूह से भरा हुआ आपको ये कहता हूं, ये सिर्फ 2 महीनों की बात है। फोकस्ड हो जाएं, आप अपने सारे के सारे इस साल के गोल्स को अचीव कर लें। आइए खुदा की तारीफ करें और खुदा की तारीफ करते